Wow, my beta won a prize. Very good. You are a papa's daughter. करा बेटा पापा का. अरे ये क्या हो गया? टूट गया? This is mama's fault. मम्मा ही सामान ठीक जगह नहीं रखती. Hello everyone, my name is Rupesh Madan and I am from Super Spurt team. I thank EduTalks to welcome us and to give us the platform to share our views. Today, we'll be sharing our views on two very important aspects which everyone deals with: success and failure. Whenever we do a task, either we get success or we fail. Just now, I behaved with my daughter in two ways. When she won, I congratulated her, saying, "Wow, you are Papa's daughter. आप पापा के प्यारे बच्चे हो." लेकिन उसने अगर कुछ नुकसान किया तो मैंने किसका फॉल्ट निकाला? उसकी मम्मा का. उसके फेलियर पर उसकी मम्मा का. मैंने ठीक किया या नहीं किया, आप कमेंट्स में डालिए कि आप मेरी सिचुएशन में होते तो दोनों बातों पे क्या करते. अगर वो कुछ जीतती तो क्या बोलते, अगर कुछ नुकसान हो जाता तो क्या बोलते. मैं स्टार्ट करता हूं एक स्टोरी से. इस मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और फिर देखेंगे इस चीज को कैसे आगे बढ़ाते हैं. शुरू करते हैं. अगस्त 1973. सतीश धवन, चेयरमैन ऑफ इसरो, उन्होंने एक टास्क दिया डॉक्टर कलाम को, to launch a satellite in orbit with thousands of components. 17 August 1979, launch day. With Dr. Kalam, thousands of scientists, engineers were working. 10,000 of workers were working. लॉन्च डे आ गया, सारे चेकअप होने लगे. रॉकेट का चेक ऑटोमेटेड कंप्यूटर से हो रहा था, क्योंकि मैनुअल चेक करना हर एक सिस्टम में बहुत बड़ा टास्क है. हम एग्जांपल एक कार का ही, कार के अंदर टेम्परेचर का चेक होता है, टेम्परेचर हाई हो रहा है नहीं हो रहा, विंडोज बंद है उसका चेक होता है, पेट्रोल का चेक होता है, कूलेंट का चेक होता है. इसी तरह रॉकेट में कंप्यूटर का चेक था. सो 4 minutes बिफोर द लॉन्च, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने पास दे दिया, रेडी फॉर लॉन्च. बट जस्ट 4 minutes बिफोर लॉन्च, कंप्यूटर सेट, डू नॉट लॉन्च, पिन ड्रॉप साइलेंट. 6 years of hard work and just 4 minutes before computer saying do not launch, there were experts behind Dr. Kalam with 20 years of experience. प्रिंट आउट आ गया जल्दी से. प्रिंट आउट में ट्रबल शूट किया गया कि क्या इशू है. इशू पता चल गया कि देयर वाज अ लीकेज इन द सिस्टम, एंड द एक्सपर्ट सेड ऑल्दो देयर इज अ लीकेज है इसमें, बट स्टिल वी कैन प्रोसीड बिकॉज देयर इज इनफ ऑफ ऑक्सीडेशन. जो भी चीज लीक हो रही थी वो बहुत मात्रा में वहां थी. Then they said we believe this should work, and then just before 4 minutes they decided to switch from computer launch to manual launch. It started, phase 1 was very good. In phase 2, rocket started spinning. At that very moment, उसी समय डॉक्टर कलाम साहब को पता चल गया था this mission is a fail, and that rocket crashed in Bay of Bengal. Within 30 seconds, then chairman of ISRO, Dr. Satish Dhawan, came and said, Dr. Kalam will have a press conference and you will come with me.
Next morning, he called Dr. Kalam. Thousands of media persons were waiting. And then Satish Dhawan said, I will take care of this press conference. You just have to come with me. Press conference, there were questions. How you can put 20 crores in Bay of Bengal? Media, of course, will ask questions. It's it's nation money, and you have to answer. Then, during this time of big failure, what Satish Dhawan said is remarkable. He said, I owe this failure, but we will deliver. Within a year, we will deliver, and I'll continue supporting my team members. I'll continue supporting my scientists, engineers with best technology available. Within a year, July 1980, same day, they were again prepared for the launch. First phase went live, second phase to provide velocity went by, third phase to provide velocity went fine, fourth phase to provide escape velocity so that rocket or satellite goes into orbit went well, and their rocket was in orbit. After a minute, Dr. Kalam announced in mic to his fellow team members, we are successful. And then Satish Dhawan said, tomorrow you will conduct the press conference. You will handle. Now see the difference. How Satish Dhawan handled the success and the failure. During failure, he took the responsibility, and when it was success, he gave the responsibility to Dr. Kalam. डॉक्टर कलाम ने इंसिडेंट अपने हर एक मोटिवेशनल स्पीच में दिया है. So we see how we have to behave in terms of success and in failure. For success, before we celebrate, we should be grateful to the person who has helped us. And for the failure, we should think about the next action, as Satish Dhawan took. So, first I'll start with how we handle failure. This was just an example to break the ice. फेल होने के क्या कारण है? There are two type of person. One is being victim, another are winner. Victim, एक फादर है, अपने घर आते हैं, बोलते मेरा ऑफिस बड़ा, मैनेजर बड़ा बेकार है, सारा काम मेरे को ही दे देता है, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, काम ज्यादा है. अब बच्चे जो हैं घर में, स्टूडेंट्स जो हैं, वो पेरेंट्स को बड़ी जल्दी कॉपी करते हैं. आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बच्चे ने कब आपसे कॉपी कर लिया होगा. एक्सक्यूज बनाना, बच्चा भी कहने लग जाएगा मेरी प्रिंसिपल अच्छी नहीं है, मेरे टीचर अच्छे नहीं है, ये जो बुक मेरे को आप देते हो वो अच्छे नहीं है. तो अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे, विक्टिम की तरह हमेशा नहीं देखेंगे कि रिसोर्सेज नहीं है, एक विनर की तरह देखेंगे. एक कोट है, बेस्ट इज वन हु प्रिपेयर्स इन द वर्स्ट. आई विल रिपीट, बेस्ट इज वन हु प्रिपेयर्स इन द वर्स्ट. अच्छी स्थिति में तो सभी प्रिपेयर कर लेते हैं, आप बेस्ट इसीलिए है कि आप वर्स्ट कंडीशन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये विक्टिम कार्ड जो है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं, एक्सक्यूज बनाना कि ये नहीं है. आपने देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल कुछ ही दिनों पहले आया था कि रेलवे स्टेशन पे एक कूली था, उसने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया. अगर वो भी ऐसे विक्टिम कार्ड खेलता कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो तो और भी बच्चे होते हैं कहते मेरे पास बुक्स नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने सिर्फ हेडफोन और मोबाइल से आईएएस क्लियर कर लिया. एंड देन वी कैन रिलेट ही वाज द बेस्ट बिकॉज ही प्रिपेयर्स इन द वर्स्ट.
मूव ऑन। हम जो फेल हो गया उसी के बारे में सोचते रहते, गिल्ट फील करते रहते हैं कि मेरी वजह से हुआ, रिग्रेट करते रहता है, अगर मैं ये स्टेप नहीं लेता, मैं अपने बिजनेस में अगर ऐसा करता, उसकी बात मान लेता तो ये ऐसा होता। उसी को लेके पछताते रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। ठीक है, आपने गलती करी, आपने उसे एक्सेप्ट करा, 1 दिन 2 दिन टाइम लीजिए, कहाँ कहाँ कमी थी उसको नेक्स्ट स्टेप में कहाँ ठीक कर सकते हैं उसका भी तो सोचना होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो आपको फेलर मिला उससे आपको लर्निंग मिली है कि ये चीज मैंने गलती करती, आगे सुधार लूंगा। सो इट सेज एक्सहेल द पास्ट, इनहेल द फ्यूचर। जो पास्ट में हो गया उसे निकाल दो, उसके बेसिस में जो एक्शन पॉइंट है उसको लीजिए, नोट करिए और सिंप्लीमेंट करिए। सिर्फ सोचना नहीं है, एनालिसिस नहीं करना, एक्शन भी लेना है। हम लोग कई बार सोचते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, सोचते बहुत कुछ है, सोचते सभी कुछ लोग हैं, लेकिन एक्शन लीजिए। आप 10 चीज मत सोचिए, 4 ही चीज सोचिए, लेकिन एक भी अगर एक्शन लेंगे तो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी। एडिसन सेड आई हैव नॉट फेल्ड 10,000 टाइम्स, आई हैव सक्सेसफुली फाउंड 10,000 वेज दैट विल नॉट वर्क। देखिए कितना पेशेंस होगा इनके अंदर, तभी इतना बड़ा नाम है इनका आज। हर एक फेलियर के बाद स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए, अगर वो कहीं फेल हो रहे हैं, so we have got a new learning from that. I'll move on. Respond and not react, this is very important. मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ। तो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक टर्म होता है गो लाइव। फॉर एग्जांपल आप आज एक्सेल यूज कर रहे हैं या कोई लेगेसी सिस्टम यूज कर रहे हैं और आप एक नए सॉफ्टवेयर में जाना चाह रहे हैं, तो जिस दिन वो सॉफ्टवेयर आप यूज करने लग जाते हैं, इंप्लीमेंट होता है, उसे कहते हैं गो लाइव डेट। मैं अबू धाबी में था, यूएई में, क्लाइंट के लिए काम कर रहा था। 1 साल हमने मेहनत करी, सारे कुछ होता है, फंक्शनल टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर को गो लाइव करने से पहले, स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जस्ट 1 दिन पहले वहां के सीईओ ने कहा मुझे इस सॉफ्टवेयर में ये चेंज चाहिए, ये मुझे पसंद नहीं है। सीईओ को खुश भी करना है क्योंकि उसने अप्रूवल देना है और वहीं से पैसा आना है। सिर्फ 1 दिन पहले, 1 साल हम लगे रहे मेहनत करने में। अब आप सोचिए उस समय कितना गुस्सा आया होगा। हम कहते हैं हमें गलतियों से सीखना चाहिए, इतना टाइम भी नहीं होता, कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं। तो मैंने दूसरों की गलतियों से क्या सीखा था, इस सिचुएशन में जब सीईओ ने कह दिया था क्लाइंट के कि मुझे ये चेंज चाहिए 1 दिन पहले, हमारा टीम लीड जो था उसने रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट हाउ? थ्रू हिज ईमेल, एक एग्रेसिव ईमेल लिख दिया, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ही वाज आउट ऑफ प्रोजेक्ट। ही डिड अ ग्रेट वर्क इन द प्रोजेक्ट फॉर कंटिन्यूअस 1 ईयर। उसको किसी ने याद नहीं रखा कि इसने 1 साल तक कितना काम करा है। दैट्स व्हाई आई से, जब भी अभी आप फेलर हो या आपको गुस्सा आए, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? रिएक्ट मतलब हम खुद तुरंत कर दे रहे, रिस्पॉन्ड मतलब we took a pause, we went outside, we relaxed, हमने उसके सारे प्रभावों को देखा कि मैं इस एक्शन को करूंगा तो क्या होगा। कहते गुस्से में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब आप फेल होंगे तो आपको कोई मोरल वैल्यूज भी अच्छी नहीं लगेंगी, कोई आपको कुछ समझाएगा तो आप कहेंगे चुप कर जा थोड़ी देर। मोरल वैल्यूज भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने देखा होगा वही बात आपको कोई 1 हफ्ते बाद समझाए, जब फेल हुई, जैसे जैसे टाइम बीतता है। कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। यस, इट इज वेरी करेक्ट। आप फेल हुए हैं तो सबसे बड़ी हेल्प आपकी कौन करेगा? टाइम। टाइम बाय करिए, काम डाउन, रिलैक्स रहिए, बाहर जाइए, क्योंकि आप उस फेलियर में घर आएंगे, अपने बच्चों से लड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फेलियर हुए आप कितने भी गुस्से में, आप घर आके अपने बच्चे के साथ खेल लेंगे ना, आपका आधा कम वैसे दूर हो जाएगा। उससे भी ना चले, थोड़ा टाइम स्पेंड बाहर करिए, अकेले बाहर चले जाइए 2-3 दिन के लिए।
to re-initialize the energy within you. एनर्जी दोबारा इकट्ठा करिए कि मैं दोबारा इस जंग को जीतूंगा जहां भी आपको फेलर मिला है। टाइम आपकी बहुत हेल्प करेगा। और हम फैमिली पे क्यों गुस्सा हो, वो तो फेल नहीं हुए, उन्होंने तो हमारा सपोर्ट करा। अब फेल होके हम उनसे गुस्सा करें तो ये उनके साथ तो गलत है, हम तो फेल हुए हैं। हमें अपने फेलियर का इम्पैक्ट दूसरों पर नहीं पहुंचाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम फेल हो गए और दूसरा सक्सेसफुल हो गया, हो सकता है जो सक्सेसफुल हुआ आपको जेलस फील कराने के लिए आपको छेड़े कि चल घूमने चलते हैं, तो आप उनकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। जरूरी नहीं आप फेल हुए तो पूरी दुनिया को आप गम में ले लेंगे, अपनी फैमिली को भी साथ में ले लेंगे, नहीं। आगे बढ़ते हैं। engage in sports. Michael Jordan said, I have failed over and over and over again in my life and that is why I succeeded. बहुत बार फेल हुए। स्पोर्ट्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं यहाँ पे, आप स्पोर्ट्स में खेलते हैं तो दो चीजें होती हैं, इधर यू विन और यू लूज। स्पोर्ट्स एक्चुअली आपको हैबिचुअल बना देता है टू डील विद दिस कंडीशंस ऑफ फेलियर एंड सक्सेस। आप देखेंगे जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, अगर हार जाते हैं दे टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं अगली बार इसको हराऊंगा, इस टीम को हराऊंगा। या सिंगल प्ले गेम है, कोई बैडमिंटन है, तो वो कहता है अगली बार मैं सिंगल्स में इसको हराऊंगा। क्रिकेट है तो टीम में वो कमांड होकर टीम लर्निंग भी होती है। इफ यू कैन प्लीज एंगेज इन स्पोर्ट्स, it will develop your personality as well as it will make you habitual. I'll move on. So guys, ये कुछ reasons थे and the way we should handle failure. Before moving on how to handle success, I'll take an example. ये बॉल है, think this as a student. ये बॉल ऐसी बॉल है जिसमें अंदर मैं इसका ढक्कन भी है, ठीक है। इसको मैं अगर जंप करता हूँ ना तो जंप होती है, इसको अगर मैं भी जंप करता हूँ तो ये जंप करती है। लेकिन मैं इसमें अगर कुछ प्रेशर डाल दूं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर डालते हैं, जो बच्चे अपने वो प्रेशर लेते हैं कि गिल्ट फील करने का, रिग्रेट करने का कि मेरे ये हुई, अगर इसमें खूब प्रेशर डाल दूं मैं और फिर इसे टॉस करने की कोशिश करूं, ये टॉस नहीं करेगी। अब आप सोचिए हम अपने बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर डाल देते हैं। इन ऑल आई वांट टू कंक्लूड कि देयर आर वेज टू डील विद फेलियर्स, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। हम ये सोचता है कि हमने फेल हो गए, कुछ लिया ही नहीं इससे, एक साल लगा दिया, नहीं। आपको पता भी नहीं चलता आपने बहुत सारी लर्निंग ले ली होती है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप वो रिपीट ही नहीं करेंगे, उससे प्रेशर क्या लेना। सो एक्सहेल द पास्ट, इनहेल द फ्यूचर। मूव ऑन करेंगे। सक्सेस, एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस क्या है? एक ए ग्रेड पा के डिग्री ले लेना, उसके लिए सक्सेस है। एक वेजिटेबल वेंडर के लिए सक्सेस क्या है? उसके सारे वेजिटेबल उस दिन बिक जाए, देन ही सक्सेसफुल। एक बिजनेसमैन के लिए सक्सेस क्या है? He gets a good deal in business, he won a good deal in business. But are they really successful? मैं एग्जांपल वापस लेता हूँ। स्टूडेंट ए ग्रेड मार्क्स ले आया, लेकिन उसने अपने एजुकेशन को इम्प्लीमेंट ही नहीं करा कुछ इस वर्ड को अच्छा बनाने के लिए। वेजिटेबल वेंडर, उसने जो भी सामान बेचा उस पैसे से अपनी फैमिली की हेल्प नहीं करी, बल्कि कोई गैम्बलिंग कर ली, कुछ ड्रिंक कर लिया, सारा पैसा बर्बाद कर लिया। एक बिजनेसमैन, अच्छी डील मिल गई, लेकिन घर गया अपने बिजनेस में इतना इन्वॉल्व हो गया क्योंकि नया बिजनेस मिला है, फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, बच्चा आ रहा है तो उसे हटा दे रहा है, काम करने दो। सो व्हाट हैपेंस, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं
तो सक्सेस थे क्या कर रहे हैं? जो बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ, घर आके काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं है, तो उसने अपनी हेल्थ खोई एक। सेकंड, फैमिली टर्म्स बिगाड़ लिए उसने, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहा है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, बच्चे से लड़ रहा है, जबकि उसकी फैमिली ने तो उसका पूरा सपोर्ट करा। ड्यू टू हिज फैमिली ओनली ही सक्सेसफुल टुडे। वेजिटेबल वेंडर है, उसके घर वाले सुबह उठ के उसको सब्जी ला के दिए, ब्रेकफास्ट दिया, सब कुछ करा, उसकी तैयारी करी। दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। स्टूडेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ? उसके पीछे एक टीचर था, कई पेरेंट्स थे, सॉरी कई टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, तो सक्सेसफुल हुआ। सो वी शुड बी ग्रेटफुल। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए हमारे पास। अगर हम आज सक्सेसफुल है, तो हमें अपनी फैमिली को, जिन्होंने हमें सपोर्ट करा है, जिस सिचुएशन में हम यहाँ पहुंचे हैं, वी शुड बी थैंकफुल टू देम। We should also be thankful to the society who has given us resources. Thankful to the nation. अगर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं होगी, तो सक्सेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डोंट स्टॉप, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मैं आईटी फील्ड से हूं। When I had 8 years of experience, the technology in which I was working changed. 8 साल के एक्सपीरियंस में वो टेक्नोलॉजी जिस पे मैं काम कर रहा था बदल गई, और अब मेरा एक्सपीरियंस हो गया जीरो नई टेक्नोलॉजी पे। आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें सक्सेस मिल गई है, तो हम इम्प्रोवाइज करते रहें। देयर इज अ सेइंग, इफ वी आर नॉट ग्रोइंग अप, वी आर ग्रोइंग डाउन। हम ऊपर नहीं जा रहे तो हम नीचे जा रहे हैं, हम सेम स्टेज पे नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड हो। एजुकेशन में हो, स्टूडेंट्स ने अगर एक बुक कंप्लीट कर ली है, तो कहते हैं रेफरेंस बुक करो। फिर उसके बाद देखो कि उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन लाइफ, रियल लाइफ में क्या है, वहां देखे। हम देखते हैं कई लोग एकेडमिक में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बाहर दुनिया में जाते हैं, उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं पता होते और वो फेल कर जाते हैं। So we should not be satisfied with the success, and so we should not stop. Motivate, spread the story. आप सक्सेसफुल हो गए, आप अपनी स्टोरी लिखिए, और स्टोरी रोज लिखिए, चाहे आप सक्सेसफुल हैं चाहे फेलियर हैं। क्योंकि अगर आप फेल स्टेज पे हैं और सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो ये स्टोरी कहीं और के काम आएगी कि आपने क्या स्टेप्स लिए जिससे आप सक्सेसफुल हो गए। आप देखते हैं कई लोग, एक स्टोरी लेता हूँ, वेट लॉस करते हैं, उनकी एक सक्सेस स्टोरी होती है कैसे करा, तो वो दूसरों से शेयर करते हैं, उनको हेल्प मिलती है। दिस इज एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आप अगर सक्सेसफुल है, यू शुड राइट योर स्टोरी। एवरी इंडिविजुअल इज अ हीरो इन दिस वर्ल्ड। आप सब एक हीरो हैं अपनी स्टोरी के। हम एक मूवी देखते हैं, उसमें एक हीरो दिखाते, दो दिखाते हैं, लेकिन अगर उसी मूवी को अलग अलग एंगल से देखें, तो उस मूवी में कई हीरो है। आजकल रामायण चल रहा था पीछे, उसमें राम के पर्सपेक्टिव से दिखाया, तो रामायण में राम हीरो है। आपने देखा होगा कि जय हनुमान भी आता, तो उसमें हनुमान को एज अ हीरो दिखाया, क्योंकि वो हनुमान के पर्सपेक्टिव से बनी थी। इस तरह एक सीता रामायण आई थी, उसमें सीता के पर्सपेक्टिव से बनी थी। लक्ष्मण के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और डिटेल में, तो लक्ष्मण एज अ हीरो दिखेगा। इन द नेट आई वांट टू से कि एवरी इंडिविजुअल इज अ हीरो। आपको अपनी स्टोरी लिखनी चाहिए, इसीलिए महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी हमें हेल्प करती है। यू नेवर नो व्हेन यू गेट सक्सेस, यू रीच द माइलस्टोन, एंड एट दैट टाइम दिस विल हेल्प अदर्स। लास्ट में मैं, फॉर द सक्सेसफुल पर्सन आई वांट टू से, Mahatma Gandhi once said, whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following task. Recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. उनका कहने का मतलब ये था कि आपके द्वारा किया गया स्टेप क्या किसी की हेल्प करेगा?
आप सक्सेसफुल हैं सोसाइटी में, क्या आप कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपने कंट्री के लिए जिसने आपको इतना कुछ दिया। और ये तभी होगा जब आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होगा, थैंक्स की फीलिंग होगी, एरोगेंसी नहीं होगी। कहते हैं पेड़ में जितना फल होता है उतना ज्यादा झुक जाता है। आपको वो पेड़ बनना है, झुक के रखना है, डाउन टू अर्थ, हम्बल, एंड सर्व द नेशन, सर्व द सोसाइटी। इफ यू हैव द वेल्थ, think about the ways you can help society. So we'll rewind what all factors we have viewed till now for failure and success. इसमें से अगर आप एक भी पॉइंट ले ले तो मेरा ये लाइव वीडियो का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। एक भी, चाहे आप रिस्पॉन्ड एंड नोट रिएक्ट वाले उस पर काम करने लग जाए, अपने फेलियर से लर्न करने लग जाए, स्पोर्ट्स शुरू कर दें, कोई एक भी एक्टिविटी आप शुरू कर दे, तो दिस विल बी अ सक्सेस फॉर अस। So we'll repeat in failure, stop being victim. Excuse मत बनाइए. I'll repeat the quote. Best are one who prepares in the worst. ये कोटेशन मेरे को बहुत काम आई। मैंने अपने स्कूल डेज में ये सुनी थी। तो जब भी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होते, ये कोटेशन मेरे को याद आती है। If I am the best, I'll prepare in the worst. Respond and not react. गुस्से में हो, फेलियर हो, एग्रेसिव हो, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्ड मीन्स to analyze, think, and then respond if it is useful for me or not. Move on. Exhale the past, inhale the future. गिल्टी फील नहीं करना है अपना आपको। एक बार गिल्ट फील कर लिया या किसी के लिए गलत कर सॉरी बोल लिया, अपोलॉजीज हो गया, ठीक है, आगे बढ़िए। और हो सके तो किसी स्पोर्ट में एंगेज हो जाइए। दिस विल हेल्प यू अलॉट टू डेवलप योर पर्सनालिटी एज वेल एज। नाउ वी विल लुक into the areas on how to handle success. We should have gratitude, thanks. We should say thanks to nature, to word, to parents, to teachers, to all those person who has helped us, to fruit vendor who provided us fruit, vegetable vendor, farmers, everyone. And now it become our duty to give something in return to them. Second is don't stop. It's a journey, not destination. Keep improvising. कभी सेटिस्फाई नहीं होना अपने सक्सेस से, बिकॉज आप अपने स्टेज पे रुक गए, बाकी दुनिया तो बढ़ रही है, आप पीछे हो जाएंगे। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग अप, दैट मीन्स यू आर गोइंग डाउन। मोटिवेट अदर्स एज वेल, शेयर योर स्टोरी विद अदर्स एज वेल। आप किसके कारण आपको ये स्टोरी मोटिवेशन मिला, आप कैसे किस किस स्टेप से आप सक्सेसफुल हुए। गिव बैक टू मैनकाइंड एज महात्मा गांधी सेड, the step which you are taking, how it will help the poorest and the poorest person which you saw. हम क्या उस स्टेप से किसी की हेल्प होगी या नहीं होगी सोसाइटी में। सो बिफोर आई गिव this platform to my counter colleague Shikha, I like to say that we are always for you. आपकी नजर में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो डिप्रेस है, या कोई भी स्टूडेंट हो जो कुछ गलत करने की सोच रहा है, एक बार हमसे बात जरूर कर लीजिएगा। This is not an advertisement, this is for mankind. If this message can be circulated, बस एक ही उद्देश्य है हमारा कि कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ गलत सोच रहा है या किसी डिप्रेशन में है, एक बार हमें मौका दीजिए, बात करिए हमसे, विल थिंक ओवर इट। कहते हैं खाली बात सुनाने से भी सोल्व हो जाती है। आप हमें सुनाइए, क्या पता सुनाते सुनाते आपको सोल्यूशन मिल जाए। और सोचिए एक बार, कुछ गलत कम ना लीजिए। सुपर स्पर इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स टू ब्रिंग बैक द इंटरेस्ट इन एजुकेशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, बीइंग एजुकेटेड का असली मतलब क्या है। सो हियर आई वेलकम Ms. Shikha Kalra, who has 6 years of experience in university colleges like Babu Banarsi Das and schools like Amenity. Over to Shikha. Thank you for listening to me. Hello everyone. Till now we have seen how to handle the success
and how to handle the failure. See, at the time of success, we have to maintain a balance. We have to be thankful to the persons who are associated with us. And in case of failure, we have to keep ourselves calm. We have to think about it, where we are, where we want to reach. As we know, success and failure go hand in hand. And I think कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आज सक्सेस है, जिसके पास सक्सेस है, वो कभी फेलियर में उसने फेलियर ना देखी हो. Every individual who are successful, उसने हमेशा फेलियर देखा है. And there is a great saying, behind every successful man there is a lot of unsuccessful years. In my profession also, I come across such situations कि बच्चे हैं, फेल हो जाते हैं. I have a real life example. मेरे पास एक बच्ची थी और she was not good in studies. फेल हो गई थी. कॉपी में मुझे लिखकर देती थी, मैम सॉरी मैंने इस टाइम नहीं किया, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी. हर बार वो नोटबुक में मुझे ऐसे लिख के दिया करती थी. बट एट लास्ट व्हाट हैपेंड, वो फेल हो गई. उसके पापा ने उसको बहुत मारा. एंड ही केम टू मी एंड ही सेड कि मैम ये पढ़ती नहीं है, आपको ऐसे एग्जाम में लिख के देती है, तो मैंने आज इसको बहुत मारा है. देन आई आस्क्ड हिम, क्या आपके मारने से आपका बच्चा पढ़ेगा या आप उसको मोटिवेट करेंगे, आप उसे स्टडीज की इंपॉर्टेंस बताएंगे, तब बच्चा पढ़ेगा. एंड द मोमेंट, एक वो मोमेंट था और एक आज ही मोमेंट है. शी रिपीटेड द क्लास और आज के टाइम में वो बच्ची टॉपर की लिस्ट में है. इतना अच्छा वो बच्ची लिखती है. और उसके फादर जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है मेरे से जरूर मिलके जाते हैं, मुझे बताते हैं कि अगर आपने उस दिन मुझे ना रोका होता मारने से तो शायद ये बच्ची ना पढ़ पाती. तो फेलियर में अगर बच्चा फेल हो रहा है तो क्या उस टाइम पे हमें बच्चे की हेल्प करनी चाहिए या उसे मारना चाहिए? उसे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बतानी चाहिए, उसको डिफरेंट सोर्सेस प्रोवाइड करने चाहिए या उसे ऐसे मार के बिठा देना चाहिए? हम बिजनेस की बात करते हैं. बिजनेस में अगर आपको सक्सेस मिली है, आपकी सक्सेस से बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं. आपके एम्प्लॉयज हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपकी फैमिली है. तो सक्सेस मीन्स व्हेन यू आर थैंकफुल टू एवरीबॉडी जिनका आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल है जिसकी वजह से आप सक्सेस अचीव कर पाए हैं. हियर आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी. दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ फादर एंड हिज सन. एक फादर था, बहुत अच्छा स्टैचू बनाता था और उसका जो बेटा था वो भी बहुत अच्छे स्टैचू बनाने लग गया था. एंड एवरी टाइम जब भी वो स्टैचू बनाता था उसका फादर हमेशा उसे बोलते थे, बेटा देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस स्टैचू, इसमें अभी भी कुछ कमी है. वो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट करता वैसे वैसे उसकी जो स्टैचू थे बहुत अच्छे बनते थे. द टाइम व्हेन ही ग्रोज अप, वो बड़ा हो गया, बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लगा. एट दैट टाइम उसकी जो स्टैचूज थे उसके फादर से भी अच्छे प्राइस में मार्केट में सेल होने लगे. एवरीबडी लाइक दैट. लेकिन फिर भी जब भी वो स्टैचू बनाता उसके फादर बोलते, बेटा अभी भी कुछ कमी है. तो वन डे ही आस्क्ड, पापा मेरी मूर्ति आपसे ज्यादा अच्छी बनती है, एवरीबडी लाइक माई स्टैचू, बट आप हमेशा कमी निकालते हो. वाई? अगर आप इतने अच्छे स्टैचूज बनाते तो क्या आपके स्टैचूज मेरे से ज्यादा प्राइस में ना बिकते मार्केट में? एट दैट टाइम हिज फादर रियलाइज्ड कि मुझे अब इसे कुछ नहीं कहना चाहिए. फिर एक टाइम आया जब उसके बेटे की जो स्टैचूज वो बनाता था उसकी डिमांड मार्केट में कम होने लगी. लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया और वो अच्छे प्राइसेस में मार्केट में सेल नहीं होते थे. देन ही रियलाइज देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दिस. वो अपने फादर के पास जाता है, फादर से पूछता है
सारी सिचुएशन उन्हें बताता है। देन उसके फादर ने उनसे कहा, बेटा एक आदत डालो, वर्ड डिससेटिस्फैक्शन मीन्स जब तक आप चीजों से सेटिस्फाइड रहोगे आप उस पर वर्क नहीं करोगे, लेकिन जितना आप चीजों से डिससेटिस्फाइड रहोगे आपको लगेगा मुझे इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप ग्रो करोगे। तो सक्सेस मीन्स कि आपने अगर ग्रो करना है यू नीड टू वर्क ऑन इट, और अगर फेलियर है यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड नो व्हाट ऑल स्टेप्स आई कैन टेक। फेल हो गए हो तो घर में ऐसे बैठना नहीं है, हमें सोचना है हम क्या कर सकते हैं इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए। We at Superspur are trying to help the students, वो बच्चे जो पढ़ने में वीक है, जिन्हें लगता है कि हम बुक्स के कंसेप्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं, हम उन कंसेप्ट्स को अपने सुपरस्पर के थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके उन बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। तो एक बार हमें मौका दीजिए अपने सुपरस्पर के थ्रू, ताकि हम उन सब बच्चों की हेल्प कर सकें। Thank you, Shikha. So, before I close this, I would like to thank EduTalks for inviting us. I would like to thank everyone who took their time out to listen to us. Thank you so much. And we would love if you can circulate our message, a message of mankind, a message of humanity, to remove this word education pressure from students' mind. हमारा एक ही मकसद है, दुनिया में कहीं भी कोई भी बच्चा अगर एजुकेशन प्रेशर को फील कर रहा है और अगर हम एक इंटरेस्टिंग वे में उसकी हेल्प कर सकते हैं तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।